پاکستان اسٹیل ملز کا فرانس کی گاڑی بنانے والی کمپنی کو زمین دینے سے انکار۔ ایف بی آئی کسٹم حکام دہشت گردوں والا سلوک کر رہے ہیں، لاہور کے تاجروں کی شکایت۔ الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار کیوں؟ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی، جس نے تمام سرمایہ کاروں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے، ود دی ایمفسس آن پریشان۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مارکیٹ کے اسپن ڈاکٹرز، کویکس اور جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں عطائی ڈاکٹر، انہوں نے مارکیٹ کے متعلق الٹی سیدھی خبریں پھیلائیں۔ مارکیٹ کے متعلق اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں کہ مارکیٹ شاید 80,000 پوائنٹ عبور کر جائے گی۔ سرمایہ کار بیچارے معصوم، کچھ خود بھی پھنسنا چاہتے تھے۔ وہی منیر نیازی صاحب کا شعر بار بار پڑھ دیتا ہوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اسٹاک ایکسچینج کے لوگ خود سامنے آئے، خود انویسٹرز نے اپنے آپ کو آ کے پھنسایا، ان کو ہرے باغ دکھائے گئے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کر اسٹاک مارکیٹ میں لگایا، اپنی جمع پونجی جو ریٹائرمنٹ کے لیے بچا کے رکھی تھی وہ تک لگا دی، بچوں کی تعلیم کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج کے جو نامور افراد ہیں ان کے لارے لپوں میں آ کر پیسے یہاں لگا دیے، اور اس کا نقصان آج تک بھر رہے ہیں، کیونکہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، بضد تھے، سنگل ڈائریکشن مارکیٹ پہ تلے ہوئے تھے۔ مارکیٹ کبھی اوپر جائے گی، کبھی نیچے آئے گی، یہ قدرت کا نظام ہے۔ عروج و زوال، چاند کا، سورج کا ڈھل جانا، پھر اگلے دن اگلی شام واپس آ جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ قدرتی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب ہارون صاحب جو کہ سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ شکریہ۔ آج مارکیٹ کے حالات تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ بڑے تازہ لگ رہے ہیں۔ جب سے ذمہ داریوں سے لگتا ہے کہ بری الزمہ ہوئے تب سے آپ نے جو ہے وہ فریش ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کے لوگ بھی اسٹریس میں رہتے ہوں گے، تو سرمایہ کار اکیلے نہیں ہیں، تو ان کا اسٹریس کیسے دور کروں جو سرمایہ کار پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ان کا جو اسٹریس ہے، اور ابھی جو آپ نے اپنا پری ایمبل میں بتایا، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ویورز کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہم جتنے بھی پروگرام آپ کے ساتھ کیے ہیں اس میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹیلی ویژن کے اوپر یا جو بھی انویسٹمنٹ ایڈوائز کے حوالے سے عام پبلک کو کہا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں، وہ یہ بات ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات، وہ ایسے پیسوں کے کبھی بھی نہیں ہوتی کہ جو آپ نے کسی ضروری کام کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے بچے کے اسکول کی فیس کے لیے اگر پیسے بچا کے رکھے ہیں تو یہ والے پیسے اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے کسی کے کہنے سے بھی نہیں ڈالنے، بلکہ یہ والے، چاہے بروکر بھی آپ کو کہے۔ نہیں، بروکر کی بات تو آپ چھوڑ دیں نا، یہ تو پیسے میرے پیسے ہیں تو مجھے فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کو تو فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ تو معصوم ہے نا ہماری عوام، آپ ان کو خواب دکھائیں گے، آپ رات کو سوئیں گے، دن میں جاگیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے، تو وہ کون بنے گا؟ کروڑ پتی کا گیم کون نہیں کھیلنا چاہتا؟ خواب دیکھنا، دیکھیے اسٹاک ایکسچینج ہمیشہ سے جس کو کہنا چاہیے کہ فیئر اور گریڈ ملا کے وہ بنتی ہے۔ اگر گریڈ آپ کی زیادہ ہے اور فیئر آپ کا کم ہے تو آپ جو ہیں وہ ہر حالات میں مارکیٹ کے اندر اپرچونٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس فیئر زیادہ ہے تو آپ کو ہر حالات میں ہر جگہ یہ سوچتے کہ یہ اچھا وقت ہے کہ میں مال بیچ دوں۔ عام آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس فیئر اور گریڈ کے فیکٹر کو کسی طریقے سے بیلنس میں لے کے آئے، اور بیلنس میں لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے ضروری کام کے پیسے ہیں، 6 مہینے کے لیے آپ کو چاہیے، 8 مہینے کے لیے آپ کو بعد میں کرنے ہیں، وہ پیسے آپ فکسڈ انکم میں پاکستان کے اندر دیکھیے لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے پیسے لگائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں کمپلیٹ کرنے کی، کیونکہ آپ کے ویورز کو یہ میسج جانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت فکسڈ انکم کے حوالے سے بہت اچھے میوچل فنڈز ہیں۔ They are giving excellent return on your money, and that's a safe
and sound investment. If you want to invest 4 महीने के लिए, it is astonishing that a former managing director of Pakistan's capital देखिए, market दो महीने के is saying कि आप जो हैं वो फिक्स्ड इनकम में पैसे रखें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि अगर 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको पैसे रखने हैं, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, बेटी की शादी के लिए पैसे देने हैं, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप समझें कि ये वाले पैसे मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसको इस्लामी जामा कैसे पहनाऊं? बहुत सारे लोग तो उसको इस्लामासाइज भी करना चाहते हैं ना। लेकिन मैं बताऊं कि अब आप सवाल ये कर सकते हैं शायद कि आप ये मुझे बताएं, बहैसियत साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर या साबिक ब्रोकर भी मैं रहा हूं 10 साल, मैं मेंबर कराची स्टॉक एक्सचेंज रहा हूं और मैंने अपना ब्रोकरेज हाउस चलाया है 10 साल। तो मुझे तो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी का पता है, मैंने दोनों एंगल से देखा हुआ है। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये बताइए कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन से पैसे लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, ताकि लोगों को ये वाला जो आपने कहा ना परेशान और हैरान, ये ना हो। देखिए, परेशान और हैरान आप उस वक्त नहीं होंगे कि आप जब वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब आप कंपनी की वैल्यूएशन को देख के, उसके नफ़ा नुकसान को देख के, उसकी बैलेंस शीट को देख के, उसको समझ के। I'll say something very rash. जी ज़रूर। I'll say something very rash. बड़ा मैं जैसे कहूँगा अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहा। ट्रैश सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, ट्रैश इंफॉर्मेशन। आज ये फलां कंपनी आ रही है, आज फलां कंपनी की प्रोडक्शन शुरू हो गई, आज ये हो गया वो हो गया। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रैश इंफॉर्मेशन फॉर मी। उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कचरा शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। अब मुझे बताएं वो क्या करें तो उसका? देखिए, ये बताइए कि वेरीफाई कैसे करें उसको? जिसको आप खुद कहते हैं फेक न्यूज़ जिसे आप कहते हैं। गुड न्यूज़। आपका सवाल बहुत ही वैलिड है और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर्स के लिए ये ज़रूरी है कि मैं इसका सही जवाब अपनी वसासत से और अपनी इस्तात के हिसाब से ज़रूर दूंगा। बात ये है कि ये जो ट्रैश इंफॉर्मेशन ख़ास तौर से ये जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये तो हमेशा मैं हर इन्वेस्टर को कहूँगा कि इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें, इसके ऊपर कोई तवज्जो ना दें। इसके पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फेक न्यूज़ के कारोबार में मुब्तला हैं। आपका काम ये हरगिज़ नहीं है कि किसी फेसबुक के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के ऊपर सुन के आप कहें कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है, बल्कि इसका सही तरीका ये है कि जो शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं उस कंपनी की कम अज़ कम आप वेबसाइट पे जाके उसका आखिरी साल का एक दफ़ा नफ़ा नुकसान ज़रूर देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस देख लें, उसकी ग्रोथ देख लें, उसके कुछ थोड़े से नंबर अगर आपने उसको इन्वेस्ट करना है। और वो वाली इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ दें, जिनके पास मार्केट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। वो घंटों स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने भी तो डबो दिया लोगों को, उन्होंने भी तो डबो दिया, शॉर्ट टर्म वालों ने डबो दिया, उन्होंने खुद को डबोया होगा, गोते लगवाए उन्होंने, जैसे धोबी घाट में गोते ऐसे पकड़ के जो है वो इन्वेस्टर का मुंह अंदर किया पानी। नहीं देखिए, शॉर्ट टर्म वालों ने शॉर्ट टर्म, मैंने तो कहा ना कि शॉर्ट टर्म के जो डे ट्रेडर्स हैं वो एक अलग क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। उनको उस काम का पता होता है, वो मार्केट के टाइमिंग्स को, वो टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, उनको पता है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो वो ये काम कर सकते हैं और उनके पास रिस्क एपिटाइट मौजूद है। वो वाले पैसों से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि बच्चे की फ़ीस देनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके आम इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को, कि भाई आपने जो पैसे डालने हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये सोच के डालिएगा कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए मैं इस कंपनी को समझ के। लेकिन सर देखे 3 नस्ल के जानवर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एक मतलब एनालिसिस के अंदर फंडामेंटलिस्ट, ये मजहब वाले नहीं, फंडामेंटलिस्ट जो कि मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की मालूम करना चाह रहे हैं, टेक्निकल जैसे आपने कहा जो ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, और इसके अलावा और तीसरी जो एक मखलूक होती है उसका नाम होता है क्रिटिक, यानी कि नाकिद, जो आपका खादिम है। ब्रेक के बाद वापस आएगा तो आपके सामने जो है वो नाकिद की तनकीद रखी जाएगी कि इन दोनों को, फंडामेंटलिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट को, किस तरह से व्यू किया जाए, इनके काम को कैसे क्वालिटेटिवली जज किया जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे हैं। आई ऑलवेज़ बिलीव डोंट थिंक इन स्ट्रेट लाइंस। ये सरमायाकार जो बड़े तबके के लोग हैं, अहम तबके के लोग हैं, ये ऐसे ही नहीं खेल खेलते। देयर आर मैनी कंस्पिरेसीज, मैनी नरेटिव्स एसोसिएटेड विद इट, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग स्ट्रेट लाइन सोचते हैं। अखबार में खबर छपती है, आप लोग देख के कहते हैं पैसा लगा दो मार्केट के अंदर। यहाँ पर मेरी गुफ्तगू जारी है। मैं हारून अस्करी साहब के साथ बात कर रहा हूँ, जो साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX रहे हैं। जनाब हारून अस्करी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया 3 मखलूक हैं, फंडामेंटलिस्ट, चार्टिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट, और तीसरा यानी कि नाकिद, क्रिटिक्स। तो मैं क्रिटिक हूँ। मैं सहाफ़ी होने के नाते ये पूछना चाहता हूँ कि इनके काम को कौन असेस करता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जो इख्तिलाफ़ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यही स्टॉक मार्केट का हुस्न है। तो ये मुझे बताएं कि इनके काम को कौन असेस कर रहा है। ये जो IBA के ग्रेजुएट बच्चे, IOBM के ग्रेजुएट बच्चे, दूसरी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट बच्चे, और सूट बूट पहनकर सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं, लेकिन काम शायद इनको इतना नहीं आता, माजरत के साथ। तो इनके काम को कौन असेस करता है कि इन्होंने काम सही किया या गलत किया? देखिए, बात ये है कि दो, आपने कहा ना 3 लोग होते हैं 3 लोग मार्केट में, 3 नहीं होते, 2 होते हैं। 2 कर लें आप। एक फंडामेंटलिस्ट और एक टेक्निकलिस्ट, चार्टिस्ट जिसे कहते हैं। मैं भी तो जगह बनाने दें अपनी। और नाकिद जो है ना, वो तो हर शोबे में और हर जगह होते हैं और बड़े अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं इन दोनों को। वो तो सही बात है। अब मसला ये है कि आपके व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जहाँ पर कोई, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक जनरल कंसेंसस है पूरी दुनिया का कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक ट्रेंड में चलती है, एक ध्यान में चलती है, एक भाव है, और वो ट्रेंड चलता ही रहता है जब तक कि वो रिवर्स ना हो। हाँ। अच्छा, और ट्रेंड रिवर्सल के जो सिग्नेचर्स हैं वो ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स हैं वो तो आपको चार्ट्स में नज़र आ जाते हैं, लेकिन चार्ट्स को पढ़ने वाला और चार्ट्स को देखने वाला और टेक्निकल एनालिसिस करने वाला जो है वो वही आदमी होता है कि जो मार्केट में अपना वक्त काफ़ी से ज़्यादा देता है। आप अगर मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं तो आपके लिए मार्केट टाइमिंग को डिटरमिन करना ऑन योर ओन उस आदमी के मुकाबले में आसान नहीं होगा जो अपना टाइम मार्केट में दे रहा है, क्योंकि देयर मल्टीपल फैक्टर्स। मार्केट के फ्लो को, मार्केट के ऑर्डर फ्लो को समझ रहा है, देख रहा है, नज़र आ रहा है उसको। ठीक है। जहाँ तक फंडामेंटल एनालिसिस का ताल्लुक है, ये जो हम आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं वो ये कि आपने देखना है फंडामेंटल्स के ऊपर, और आपने अगर लॉन्ग टर्म करना है तो इवन अगर आपकी मार्केट टाइमिंग में कुछ महीने का, एक आध हफ्ते का उतार चढ़ाव होता भी है तो उससे घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि जब अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर आपका उसमें फ़ायदा है। फिर मार्केट के अंदर एक आम कहावत है कि अगर आपने कोई चीज़ शेयर्स ख़रीदे हैं और आपके पास एक रीज़नेबल प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट जो है वो ज़रूर एक्यूमुलेट करते रहें। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में एक कहावत है कि मुनाफा चोर होता है। तो अगर आपकी 20% 15% इंक्रीज़ हो गई विद इन योर स्पेसिफाइड टाइम, तो और आपको अभी भी लगता है कि मार्केट आगे जाएगी, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से सर बहुत सारे लोग एक और अंग्रेजी एक सेकंड, जब मार्केट नीचे आ रही है, अब देखिए मार्केट 38,000 तक आ गई थी, फिर गई 44-45,000 तक, आज 42-43 के लगभग चल रही है। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर आम आदमी ये समझ ले कि पाकिस्तान फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस ये है, एक बात ये कि कंपनियों के मुनाफे, क्या कंपनियों के मुनाफे कम हो रहे हैं। अगर आपकी जो कंपनी है, जैसे मिसाल के तौर पे सीमेंट की कंपनी है, अब आप लोगों की तवज्जो आ गई है सीमेंट की बोरी की प्राइसेस के ऊपर, बोरी की प्राइसेस ऊपर जाती है तो सीमेंट की कीमतें ऊपर जाती हैं, बोरी की प्राइसेस नीचे जाएगी तो नहीं, लेकिन आपकी और मेरी सोच में फ़र्क भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और जो तरीकाकार आप अपनाएं या कोई भी मार्केट में अपनाता है और मैं अपनाऊं, उसमें फ़र्क भी हो सकता है। और इसी इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे खरीद और फरोख्त होती है। कोई कुछ ऐसा आजकल जो मार्केट का ट्रेंड नज़र आ रहा है उसके अंदर मार्केट ने फोकस किन चीज़ों पे किया हुआ है।
देखिए मार्केट ने फोकस किया हुआ है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पर, मार्केट ने फोकस किया हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर, मार्केट ने फोकस किया हुआ है IMF की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें वो काफ़ी से ज़्यादा क्रिटिकल है हमारी इकोनॉमी के बारे में, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो शायद ऐसा ना हो कि IMF की तरफ दोबारा जाना पड़े, क्यों गो के हमारे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है और वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे जो हैं वो शायद हम चाइना से भी लोन ले रहे हैं और पैसे आ जाएंगे और हमें IMF तक जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। अभी उनका बयान आया है आज के अखबारात में कि जो एक्सपोर्ट है वो 15% बढ़ गई है फरवरी की और जो इम्पोर्ट है वो सिर्फ 8% बढ़ी है। सर लेकिन लेट मी जस्ट टेक यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से क्योंकि प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस की जो बैनुल-अक़वामी सतह पर बुनियाद समझी जाती है वो है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ठीक है सर, एक मैं वो बात कर रहा हूँ, सारी फाइनेंस की किताबें उसको आप देख लें, उसमें सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाते हैं गॉर्डन ग्रोथ। एक भी अभी तक आपकी कौम में एनालिसिस मुझे नहीं मिली जो कि फाउंडेशन इसको रख के बनाए। हाँ, EPS की बुनियाद के ऊपर मैंने कैलकुलेशंस देखी हैं, प्राइस मल्टीपल की बुनियाद पर रखी है, लेकिन सर माजरत के साथ फंडामेंटल एनालिसिस की जो बुनियाद है, जो सुतून है, वो है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी फ़र्क असेसमेंट, मेरी फ़र्क, एक भी शख्स आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस बुनियाद पे प्राइस कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्यों? मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है गलत हो। इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए बहुत अहम है कि मैं आपके व्यूअर्स को किसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के अंदर नहीं उलझाना चाहता, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल मैं नहीं कहना चाहता। हाँ। मैं सिंपल बात करना चाहता हूँ और वो ये कि जब, और जो मैंने पहले भी कहा है कि आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है आप उसकी कम से कम पिछले 1-2 साल की प्रॉफिट एंड लॉस या उसके बैलेंस शीट जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो ज़रूर देख लें। और ज़ाहिरी बात है कि अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स में और सेल्स में ग्रोथ नज़र आ रही है तो वो बेहतर कंपनी है, और किसी कंपनी के रेवेन्यूज़ में यानी कि उनकी ओवरऑल सेल्स में कमी नज़र आ रही है या प्रॉफिट्स के अंदर कमी नज़र आ रही है तो उस कंपनी के बारे में आपने होशियारी करनी। एक शरबत की कंपनी है, रमज़ान में उसकी कीमतें बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होता तो ये खुला तादाद नहीं, ये खुला तो ये देखें ना कंफ्यूज। एक कंपनी टेबल कुर्सी कंपनी है, मुझे नहीं पता वो काम क्या करती है, सबसे ज्यादा उसके अंदर काम और उसकी आवाज आ रही होती जगह जगह से, ये ले ले भाई ये ले ले, अब पता नहीं उसका क्या नाम है। देखिए उसकी वजह शायद ये हो सकती है और ये भी आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। इसके पीछे ब्रोकर है सर, नहीं इसके पीछे फलां वाला भाई है, फलां वाला भाई है, फलां वाला भाई है। मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर आप मुझे मौका दें। बात यह है कि अगर किसी शख्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है एक ऐसी कंपनी में जो कि आपने कहा शरबत की कंपनी में, जिसकी सेल्स जो है मिसाल के तौर पर जिसकी सेल्स जो है वो रमज़ानों में बढ़ती है, बढ़नी चाहिए, तो अब अगर वो ये कहता है कि मैंने उस वक्त ख़रीदा जब कोई नहीं ख़रीद रहा था, तो ज़ाहिर है मैं उस वक्त बेचूंगा जब सब लोग ख़रीद रहे होंगे, तो वो प्राइस को बैलेंस करती हैं ये चीज़ें। और ये मार्केट का एक तरीके का मार्केट का हुस्न है, यही तरीक़ाकार है। आज आपने देखिए पाकिस्तान की जो ग्रोथ फिगर्स आ रही हैं उसकी वजह से हम समझते हैं कि स्टील का सेक्टर, सीमेंट का सेक्टर, पेंट का सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो मार्केट टाइमिंग का जब हम हिसाब निकालते हैं तो क्या वो हमें आज ख़रीदना चाहिए, कुछ इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए जब ख़रीदना चाहिए, या किस वक्त ख़रीदना चाहिए, तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन अगर आपने ये 3 साल के लिए या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर 2% 4% की मार्केट, इवन 10% की मार्केट में कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर फंडामेंटली वो शेयर स्ट्रांग है तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, बिल्कुल सही आपने बात की कि ये इवेंट बेस्ड जितनी चीज़ें होती हैं टेक्निक्स के अंदर आती हैं, लेकिन व्हेन यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली फिर योर मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंजेस। अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को मैं बीच में लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन खुद ब खुद वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आ गया, लेकिन इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द मार्केट। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि क्यों एक ब्रोकर जो है वो US एम्बेसडर बन के चला गया, या कोई मतलब कि टाँका जुड़ता है तो क्यों गया वो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम हारून अस्करी साहब के साथ, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX रहे हैं, और यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े मज़ेदार किस्म की। आप एक तरफ देखें तो स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक अफराद एम्बेसडर जा रहे हैं अमेरिका को, तो कोई यहाँ से क्रिकेट टीम को रवाना कर रहा है। हमारी जो ये मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें, पता नहीं क्या सिकंदर, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने टीमों के रखे हुए हैं, उसमें जो है स्टॉक ब्रोकर इन्वॉल्व हुए हुए हैं। स्टॉक ब्रोकर हर उस गैर मुतल्लिका चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं जिसका शायद कोई लिंक स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस से नहीं मिलता। तो मैं आपकी तरफ जाता हूँ हारून साहब, और बुनियादी तौर पर मुझे ये बताएं, ये जो सिलसिला थोड़ा सा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, तजस्सुस बड़ा है कि अली सिद्दीकी साहब एम्बेसडर जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टॉक एक्सचेंज वाले अच्छा सोचें, शायद कोई सरमाया लेकर आ रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छी बात, आपके पास कोई खबर हो? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। और दूसरी बात ये कि अली जहांगीर साहब एक बैंकर भी हैं, आजकल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्टॉक ब्रोकर उनके वालिद साहब रहे हैं। हाँ। और दाखाना तो मिलता है स्टॉक ब्रोकर के ज़ाहिर है कि उनके पास शेयर ज़रूर होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है कि डायरेक्ट स्टॉक ब्रोकर को जो है कोई अचंभे की बात नहीं, अचंभे की बात नहीं है। बात एक तो ये हमारा इसमें कोई रोल है ही नहीं कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें। देखिए, सियासी तौर पर अखबारात भरे पड़े हैं, और कल अगर आपने टेलीविज़न देखा होगा, सियासी बात होती तो ठीक है, तो और टेलीविज़न पर बहुत सारे माहिर अपनी राय इस मौजू पर दे चुके हैं। माहिर कहकर आप मुस्कुराए भी। माहिर यानी स्टॉक एक्सचेंज के माहिर बोले ना, स्टॉक एक्सचेंज के माहिर जो है बैठे रहे और इस बात करते रहे कि जनाब अली सिद्दीकी साहब अमेरिका का एम्बेसडर क्यों बने। अब तो और प्राइम मिनिस्टर का फैसला या हुकूमत का फैसला एक आम स्टॉक मार्केट का एक्स ब्रोकर या sending an educated person to become an ambassador of Pakistan to the United States, there's nothing wrong with it. नहीं, देखिए, ये व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आई थिंक कि ये इस टेबल पे बैठ के कोई उस पर कमेंट्री करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात होगी। ज़ाहिरी बात है कि इसके राइट्स एंड रॉन्ग पूरा अखबार और पूरा टेलीविज़न भरा पड़ा है, दोनों तरफ की राय उसके अंदर मौजूद हैं, और मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम की एम्बिट में ये कोई अहम चीज़ है कि हम उसके ऊपर पॉजिटिव या कोई नेगेटिव राय दें। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा सरमाया आने वाला है कि नहीं। सरमाया बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तो फोकस नहीं, उसके अंदर बहुत अहम सवाल किया आपने। अमेरिका की जो पॉलिसी हमें नज़र आ रही थी, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद जी, और तो अब उसमें लगता है कि काफ़ी से ज़्यादा बेहतरी आ गई है। और अभी उनके असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा ख़ातून जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से साथ मीटिंग की है, और बहुत ज़्यादा अखबारात के ज़रिए जो इत्तलात आ रही हैं उसके अंदर हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है, अमेरिका मैं समझता हूँ कि बेशक देर से, लेकिन वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते के अंदर अमन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए। अब आपका सवाल ये था कि इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है हमारी ग्रोथ स्टोरी। पाकिस्तान की 200 मिलियन की आबादी, 207 मिलियन की आबादी, और तकरीबन 300 बिलियन की इकॉनमी, जो कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो 500 बिलियन की इकॉनमी है, वो एक बहुत अहम है इस दुनिया में। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ है आजकल के ज़माने में, और ये स्टोरी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है। गो के हमारे पास ख़ास तौर से बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, फिस्कल डेफिसिट के हवाले से बहुत चैलेंजेस हैं। हुकूमत को इस बात की एडवाइस आज हर शख्स दे रहा है कि इस पर बात आपने की, मेरे पास वक्त फौरी तवज्जो देनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे पास वक्त मुख्तसर था। आपका बहुत शुक्रिया हारून अस्करी साहब, आप वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।